only to old partners. समझ रहा है? Change in relationship between the partners is called reconstitution of partnership. True. Starting में बता रहे यार reconstitution, admission, retirement है सबको reconstitution बोला. What is reconstitution? Whenever you change the agreement. Agreement is constitution. जब उसको change कर दे तो reconstitution. Then when new partner always brings his share of goodwill in cash. False. The capital से भी हटते हो. When the goodwill is written off, goodwill account is debited. Credited. Old partner, new partner to goodwill. New ratio minus old ratio is equal to sacrifice ratio. OR minus. False. Usually when a new partner is admitted in the firm, there will be an increase in the capital of the firm. True. वही उसीलिए तो लाता है उसको. Cash bank account is credited when goodwill is withdrawn by the old partners. Withdrawn, तभी cash bank credit होता है. I'll give you 5 minutes. Please go through the reasons. Reasons पढ़ लो फटाफट. The reasons read कर लो फटाफट. Reasons of true or false 2.5 mark का आएगा एक. टेस्ट में भी आ सकता है. Reasons 2.5 मतलब 2. 1 mark for true false, 1.5 mark for reason. 2 sentences at least you need to write. एक्सप्लेनेशन है भी कुछ खाने वाले हो. हाँ मतलब किसका आप बोल रहे हैं? कितने का? Mostly NPO और final account, but don't take risk. पढ़ के जाओ एक बार. Go through करके जाओ. सर दक्ष नहीं आया. अटक गया सुमैया के पास. हैं? कैसे? तो आ तो सकता है ना क्लास पहुंच ही गया था तो झूठ बोल रहा है. गधा है. ये भी ये तो ओरियन के पास अटक गया था. ये आया था. उसको पढ़ाई करना. वो झूठ बोल रहा है. वो लेट निकला होगा. हेलो गाइस. पेट भर के पढ़ाई करता है. समोसा दवा दवा. Go through the reasons quickly. सच में सर मजा आ जाए. बोलो हम लेकर आते. फटाफट करो. Reasons कर लो quickly. सर पंकज देखे जाएगा. खाली बोलो. बस. देखा reasons. Odd one out. General reserve, creditors, machinery, capital. Why? Liability and asset. Decrease in furniture, patents return of increase in principal hardly return.
वाई वो क्रेडिट साइड आएगा हाँ बाकी डेबिट में आएगा लॉस सुपर प्रॉफिट मेथड वैल्यूएशन मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बाकी तीन मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल ओके वैल्यूएशन मेथड भी होता है सीए में है A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 1:1. C is admitted. A surrenders 1/4 share and B surrenders 1/5 of his share in favor of C. Calculate the new profit sharing ratio. मिला? तो A surrenders 1/4 share and B surrenders 1/5 share. आता है कैलकुलेट करने के लिए OR ऐसा होता है देखो नीचे दिया हुआ है OR is 1:1 मिला सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझ में आया एक्चुअल सैक्रिफाइस दिया हुआ है शेयर इनटू सैक्रिफाइस एंड देन वो लोग ने A प्लस B किया है आप सीधा OR माइनस एक्चुअल SR कर सकते हो ओके OR माइनस SR इज एनआर वैसे भी आंसर आ जाएगा मिला Anika and Radhika are partner sharing profits as 5:1. They decided to admit Sanika in the firm for 1/5 share. Calculate the sacrifice ratio of Anika and Radhika. If nothing is given, what do you assume? OR equal to SR. So 5:1. दूसरे वाले में it is 5:1. कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत है ही समझा हेलो Pramod and Vinod are partners in the ratio of 3:2. After the admission, the new ratio is 4:3 to find out sacrifice ratio. कैसे करोगे? Sun formula. SR is what? OR minus NR. SR is OR minus NR. मिला? Got that? Complete the following. Dash is equal to total profit upon number of years. Average profit. Normal profit is equal to dash into NRR upon 100. Capital employed. अभी क्या? Stock shown in the balance sheet. Stock is undervalued by 20%. What is the cost of stock? ये जो 1,60,000 है ना 20% से अंडरवैल्यूड है अंडरवैल्यूड कैसे कर देगा 100 और 80 के नीचे 160 लिखो तो 100 कितना 2 लाख 160 into 100 upon 80 2 लाख मिला अभी वन सेंटेंस है आंसर इन वन सेंटेंस 10 है आई गिव यू 5 minutes प्लीज गो थ्रू वन सेंटेंस 5 मिनट फटाफट रीड कर लो कुछ डाउट हो तो पूछ लो क्योंकि बोर्ड्स में आपको सेम लिखना पड़ेगा तो ही मार्क्स मिलेगा ओन वर्ड्स में ठोक दोगे कुछ भी तो मिलने वाला नहीं एक बार पढ़ा रहेगा तो आइडिया रहेगा क्या लिखना है गो थ्रू द वन सेंटेंस ये कोई भी चैप्टर से आ सकता है ये टेस्ट में भी आएगा कोई भी चैप्टर से आ सकता है वन सेंटेंस ओके रीड कर लो नहीं समझ में आया तो पूछ लो कुछ भी देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक सर सीए एग्जाम से संडे ना Not Sunday, Tuesday, Monday, Tuesday. और French, which chapters are there? DRS rectification था. DRS rectification और Vacation से पहले तक जो हुआ है सब चलो पढ़ लो अभी टाइम पास Read the one sentence fast. क्या करता है तू सुगर तो राजेश हुआ समझा कुछ नहीं होता है कुछ नहीं
and Harsh. Nakshi. Yeah. So now we are starting with the new topic called retirement of a partner. Okay? Retirement of a partner also belongs to the same universe of reconstitution. What is reconstitution? Changes in the relations between partners, right? Happens at the time of admission or retirement or death or change in profit sharing ratio. Now, what do you mean by retirement? Partner आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है. But partner leaves the business. That is what is called as retire. Partner business छोड़ के जा रहा है. बराबर है? तो retirement का मतलब ये नहीं कि बुढ़ा होके जा रहा है. You can leave the business for any reason. ओके, झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बेटर अपॉर्चुनिटी, पार्टनरशिप एट विल है, तो भी उसको छोड़ के जाने का है, तो वट एवर द रीजन द पार्टनर इज लीविंग, इट्स कॉल्ड रिटायरमेंट. नाउ द प्रॉब्लम स्ट्रक्चर, द अकाउंट्स, एवरीथिंग रिमेन्स सेम लाइक एडमिशन. वही 4 अकाउंट्स बनाने हैं. कौन से? रिवैल अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट. वही 4 अकाउंट और बैलेंस शीट है. पूरा स्ट्रक्चर सेम है, डेट्स भी सेम है, क्योंकि एडमिशन कब होता था? फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर. तो आप चाहोगे कि रिटायरमेंट भी कभी हो? लास्ट डेट या फर्स्ट डेट दो, बैलेंस शीट बनाने के बाद. तो क्या है, नेक्स्ट ईयर का अकाउंट 2 पार्टनर, वहां पे 2 से 3 हो रहे थे, यहाँ से 3 पे 3 से 2 हो रहे हैं. बराबर है? तो रिटायरमेंट का मतलब एक पार्टनर जा रहा है, और वो भी फर्स्ट डे होगा, सेम अकाउंट है. वही चीजें आपको ध्यान रखनी है, रेशियोज, गुडविल एंड रिवैल. रेशियो पार्ट पे ध्यान देते हैं. रेशियो एडमिशन में कौन से रेशियोज है? OR, SR, NR. रिटायरमेंट में कौन सा पता है? OR, GR, NR. OR, GR, NR. What is OR? OR, let us say it is 3:2:1. GR का मतलब होता है गेन रेशियो. GR का मतलब होता है गेन रेशियो. फॉर एग्जाम्पल, 3 पार्टनर्स थे, A, B and C. A, B and C. They were sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. 3:2:1. Let's take it in percentage form. तो percentage form में थोड़ा इजी बना लेते हैं इसको. Let us take 5:3:2. So 5:3:2 was the old ratio. 5:3:2. तो 5:3:2 in percentage form क्या होगा? 50%, 30%, 20%. अब एक पार्टनर जा रहा है, लेट्स से C जा रहा है, तो ये अपना 20% छोड़ के जा रहा है. Who will take his 20%? A and B. इस 20 में से A को कितना जाना चाहिए, B को कितना जाना? कैपिटल के हिसाब से.
कैपिटल के हिसाब से, मतलब ओरिजिनल पीएसआर के हिसाब से, ओरिजिनल पीएसआर के हिसाब से। जिसका ज्यादा प्रॉफिट उसका ज्यादा गेन, जिसका कम प्रॉफिट उसका कम गेन। वहां पे भी वही था, जिसका ज्यादा प्रॉफिट उसका ज्यादा सैक्रिफाइस, जिसका कम प्रॉफिट उसका कम सैक्रिफाइस। तो इधर भी सेम है, जिसका ज्यादा प्रॉफिट उसका ज्यादा गेन। तो जो 20% वो छोड़ के गया है उसमें से 5 parts will go to A and 3 parts will go to B. Is that correct? So can I say 12.5 A को जाएगा and 7.5 B को जाएगा, बराबर से। तो इसका शेयर 30 प्लस 12.5 42.5 हो जाएगा और 7.5 इसका शेयर हो जाएगा 37.5 और इसका हो जाएगा 62.5, 12.5 इसमें ऐड हो जाएगा। समझ में आया? जो 20% वो छोड़ के गया वो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? ओल्ड रेशियो। तो जो 20% उनको मिल रहा है ना, जो 20% जिस रेशियो में मिल रहा है ना उसको क्या बोलते हैं? गेन रेशियो। तो जैसे कुछ नहीं दिया है तो OR इक्वल टू SR, वैसे कुछ नहीं दिया है तो OR इक्वल टू GR, GR इज इक्वल टू OR। तो गेन रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया है तो गेन रेशियो इज सेम एज ओल्ड रेशियो 5:2। अब न्यू रेशियो क्या मिला? 62.5 और 37.5। इसको आप अगर और सिंप्लीफाई करोगे ना, ये भी मिलेगा 5:3, ये भी मिलेगा 5:3। करके देखो, दिस इज आई थिंक 7.5 into 5, नहीं, दिस इज 12.5 into 5 and this is 12.5 into 3. You can check 12.5 into 5 and 12.5 into 3. So the ratio is what? 5:3. समझ में आया? लॉजिक ये है, सम करते वक्त ना जो गया उसको हटा दो, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जो गया उसको हटा दो। तो what was OR? 532. What is GR? 5:3. What is NR? 5:3. Simple. Suppose C के जगह A जाता तो what would have been your GR? 3:2. And what would have been your NR? Suppose B जाता तो GR would have been 5:2 and NR also 5:2. It's very simple in retirement. जो गया उसको लात मार के भगा दो। Is it clear? तो बचा हुआ GR, बचा हुआ NR, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कैसे होता है कि वो जो GR, वो जो भी शेयर छोड़ के जाता है वो पुराने पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, तो उनके बाद उनका न्यू रेशियो भी सेम एज ओल्ड रेशियो ही रहता है, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। समझा? दिस इज टाइप 1। टाइप 1 में उधर पता है OR, SR, एक्चुअल SR, NR करते थे। इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो गया उसको उड़ा, जो गया उसको उड़ा। दूसरा टाइप है जहां पे OR और NR दोनों दिया हो, OR भी दिया होगा 2:2:1 और NR भी दिया होगा 1:1। लेट्स अब GR कैसे ढूंढोगे? उधर एक फॉर्मूला था याद है, SR कैसे ढूंढते थे? OR माइनस NR। तो GR कैसे ढूंढोगे? NR माइनस GR कैसे ढूंढोगे? What is gain? The ratio in which existing partner are benefiting, gaining on retirement, right? तो यहाँ पे न्यू बड़ा हो जाएगा ना रेशियो, ओल्ड रेशियो कम था, न्यू बड़ा हो जाएगा। एडमिशन में क्या था? ओल्ड बड़ा था, सैक्रिफाइस करके न्यू छोटा हो गया, तो ओल्ड माइनस न्यू गया, ओल्ड माइनस न्यू इज सैक्रिफाइस। इधर न्यू माइनस ओल्ड इज गेन। इसमें भी सेम ही रहा था, मुझे तो समझ नहीं आया चेंज क्या हुआ। ओल्ड रेशियो एडमिशन में ज्यादा था ना, फिर सैक्रिफाइस किया तुमने। नहीं, मैं इसका पूछ रहा हूँ, 3:2 ही तो रहा, मतलब समझो आपने बोला A:B:C 5:3:2 है, उसमें से A हट गया तो उन लोगों का न्यू रेशियो भी 3:2 ही रहा। In the absence of any information, they will gain in the same as old ratio. But यहाँ पे OR और NR दोनों दिया है, तो जरूरी नहीं है कि गेन ओल्ड रेशियो में ही क्या हो।
अलग भी हो सकता, तो कैसे करने का? GR is NR minus 1. GNU. The formula is called as GNU. सब है नहीं, सन फॉर्मूला का ऑपोजिट. ओके, GNU. गन्नो समझा? सन फॉर्मूला क्या था? SR was OR minus NR. मुझे बताओ, जब सब में OR और NR दोनों दिया होता था, डिड यू अज्यूम SR is equal to OR? अलग भी हो सकता है, इधर भी गेन और ओल्ड कभी कभी सेम हो सकता है, कभी कभी अलग भी हो सकता है. तो यहाँ पे गेन रेशियो कैसे ढूंढना है? NR माइनस OR. तो NR माइनस OR कैसे होगा? A का क्या होगा? 1/2 माइनस 2/5. LCM is 10. 5 minus 4 1/10. और B का होगा 1/2 माइनस Same 2/10, which is 5 minus 4/10, which is 1/10. So I think my 2/5. GR 2/5. I think my GR is what? 1:1. In this case, what is my GR? 1:1. समझ में आया? कुछ अलग भी हो सकता है. अगर OR और NR दोनों दिया है तो GR अलग भी हो सकता है, not necessarily same as OR. Understood? Once again, how do you calculate GR when OR and NR are given? NR minus OR. NR minus OR is GR. NR minus OR is GR. बात समझ में आई? पक्का पक्का. दो तरीके से रेशियो मिलेंगे. एक नॉर्मल तरीका जहां पे सिर्फ OR दिया है. सिर्फ OR दिया है तो क्या करने का? हटा दो, जो गया उसको हटा दो. OR इक्वल टू GR इक्वल टू NR. OR इक्वल टू GR इक्वल टू NR. टाइप 2 में OR NR दोनों दिया है. OR NR दोनों दिया तो कैसे ढूंढोगे? GR is NR minus OR. GR is what was SR? OR minus NR. What is GR? What do you mean by gain ratio? Ratio in which existing partners gain due to retirement of a partner. समझ में आया? रिवैल का पार्ट पूरा सेम है. Why do you do revaluation at the time of retirement? और पार्टनर अपना लेके जाएगा प्रॉफिट. रिटायरमेंट के वक्त रिवैल करने की क्या जरूरत है? थर्ड पार्ट पर उसका शेयर मिलता एग्जैक्टली. रिटायरमेंट के वक्त आप क्यों रिवैल्यू करते हो? यू ब्रिंग ऑल द एसेट्स टू योर मार्केट वैल्यू बिकॉज थर्ड थर्ड को भी उसका